کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ انصاف تک علاج بند، فیصل آباد کے ڈاکٹرز ڈٹ گئے۔ لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف احتجاجاً OPD بند۔ الائے DHQ جنرل ہاسپٹل اور حسیب شہید کالونی میں ڈاکٹرز ہڑتال پر۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن فیصل آباد کا سیکیورٹی بل کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض پریشان۔ ینگ ڈاکٹرز کا سیکورٹی بل کی منظوری تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ الائے DHQ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد، سمن آباد اور حسیب شہید کالونی ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضوں میں کام بند کر دیا۔ علاج معالجہ کے لیے آنے والے مریض پریشانی سے دو چار رہے۔ کہتے ہیں نجی ہسپتالوں سے مہنگا علاج کروانے کی سخت نہیں رکھتے، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، جبکہ یہاں ڈاکٹرز نے کام بند کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ اپنائیں جس سے غریب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ کل بھی آئے، کل نہیں لیا، آج نہیں ہے، آج نہیں مل رہی ہے۔ مریض ساڑھے 8,000 روپے وہ بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ رپورٹ تو کیا چیز لکھی ہوئی ہے کیا نہیں لکھی ہوئی۔ ینگ ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ سیکورٹی بل کی منظوری دی جائے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ پراپر ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے تاکہ ہم اس پراپر سیکورٹی کے اندر رہ کے بہتر اپنی ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ دے سکیں۔ ہم نیشن کے لیے یہاں پہ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیکورٹی لیجسلیشن ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں پرووائڈ۔ ڈاکٹروں کے احتجاج کے سبب تقریباً 13,000 سے زیادہ مریضوں کو روزانہ علاج کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں ایڈز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 2 ماہ میں 40 کیسز سامنے آ گئے، 3 سال میں رپورٹ کیسز 715 ہو گئے۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق مئی میں 62 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 22 افراد میں ایڈز پازیٹیو پایا گیا۔ اپریل میں بھی 18 افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی۔ کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق مئی میں 62 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 22 افراد میں ایڈز پازیٹیو پایا گیا، جبکہ اپریل میں بھی 18 افراد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی۔ ایڈز کنٹرول پروگرام چنیوٹ اظہر عباس کا کہنا ہے کہ ایڈز پھیلنے کی وجوہات عطائیت، غیر محفوظ جنسی عمل اور غیر محفوظ انتقال خون ہے۔ مسلسل بخار، وزن کا کم ہونا، پیٹ خراب رہنا ایڈز کی علامات ہیں۔ یہ بیسیکلی امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا، اس میں وہ بالکل ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا، بخار رہتا ہے کافی عرصے تک، اس کے بعد جو آپ کا پیٹ ہے وہ خراب رہتا ہے، آپ الرجی ہو جاتی ہے، مطلب جسم پہ دانے وغیرہ بن جاتے ہیں، آپ کا جو منہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بیسک جو ہے نا، ایک بندے سے دوسرے بندے میں لگنے کی جو وجہ ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ DHQ میں موجود ایڈز کنٹرول کلینک میں تمام اسکریننگ اور علاج کے ساتھ ساتھ مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد کے رورل ہیلتھ سینٹرز میں NCD کلینک قائم کرنے کا فیصلہ۔ رورل ہیلتھ سینٹرز مامو کانجن، ستیانہ اور ڈچکوٹ کے مراکز صحت کے ہیلتھ کاؤنسل کو بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا۔ تینوں رورل ہیلتھ سینٹرز کو 5-5 لاکھ روپے ہیلتھ کاؤنسل کا اضافی بجٹ دیا جائے گا۔ مرکزی صحت میں میڈیسن اسپیشلسٹ، سرجن، گائناکالوجسٹ اور فارماسسٹ بھی تعینات ہوں گے۔ محکمہ صحت میں غیر وبائی امراض کلینک سے متعلق کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار نے ضلع بر کے ہسپتالوں کی کارکردگی کو چیک کیا۔ کہتے ہیں تحصیل ہسپتالوں میں 2018 سے NCD کلینک قائم ہے، اب رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی NCD کلینک بنائے جائیں گے۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہیپاٹائٹس B C ہے اور ایزتما ہے، COPDs کے پیشنٹس ہیں، ان کو ان کی پراپر تشخیص کرنے کے لیے، ان کے ٹیسٹ، اس کے بعد اس کی ڈائگنوسس اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ گورنمنٹ نے ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں 2018 میں علی جہاں خان صاحب جب ہمارے سیکرٹری تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کروائی ہیں۔ CEO ہیلتھ نے بتایا کہ سب سے پہلے رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ، مامو کانجن اور ستیانہ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ان تینوں میں رورل ہیلتھ سینٹرز کو 5-5 لاکھ روپے ہیلتھ کونسل کا اضافی بجٹ دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی صحت میں میڈیسن اسپیشلسٹ، سرجن، گائناکولوجسٹ اور فارماسسٹ بھی تعینات ہوں گے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی تعیناتی کے لیے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو سمری بھیجی ہوئی ہے۔ ہمارے 3 RSC سلیکٹ ہوئے ہیں، جس میں ستیانہ ہے، مامو کانجن اور ڈچکوٹ۔ ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے انسٹرکشنز آ گئی ہیں، ان کے ہیلتھ کونسلز میں اضافی پیسے بھی مل گئے ہیں 5 لاکھ روپے، اور تاکہ ان کی جو کوئی ریپیئر مینٹننس ہے، کوئی ہماری میں کوئی ایسی چیز ریپیئر ہونے والی مشینری اکوپمنٹس ہے یا اور کوئی لاجسٹکس ریکوائرڈ ہیں وہ پرچیز ہوں گے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار نے ناقص کارکردگی والے NCD کلینک کے فوکل پرسن کی سرزنش کی۔ کیمرامین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے فعال۔
फरवरी 2021 से शुरू होने वाले मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आई। एयरपोर्ट पर 2 रनवे, परवाजों का सिलसिला बढ़कर 150 से ज्यादा हो जाएगा। बोइंग 737 और कार्गो परवाजें भी लैंड कर सकेंगी। एक हफ्ते के दौरान 480 टन कार्गो किया जा सकेगा। कतर एयरवेज और एयर जिना फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेशन के ख्वाहिशमंद। फैसलाबाद से बैरून और अंदरून मुल्क सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे के ऑपरेशन के साथ 2 रनवे हो गए। एयरपोर्ट पर अब बड़े मुसाफिर जहाजों समेत कार्गो जहाज भी आ सकेंगे। इससे कबल फैसलाबाद में सेकेंडरी रनवे था जो सिर्फ छोटे मुसाफिर तैयारों के इस्तेमाल के काबिल था। फैसलाबाद से मुतादिद बार जायद वजन होने पर जहाज को मुसाफिर सामान छोड़ना या कराची से रिफ्यूलिंग करवाना पड़ती थी। मरकजी रनवे की तामीर डीजी सिविल एविएशन की हिदायत पर एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया की खुसूसी काविश पर तकमील को पहुंची। मरकजी रनवे की तामीर फरवरी 2021 में शुरू हुई। 31 मई को तकमील पर PIA की पहली परवाज ने लैंड और टेक ऑफ किया। मरकजी रनवे और एयरबस A310 भी ऑपरेट हो सकेंगी। बड़े रनवे की तामीर के बाद एक हफ्ते के दौरान 480 टन कार्गो भी किया जा सकेगा। परवाजों का सिलसिला बढ़कर 150 से ज्यादा हो जाएगा। नए मरकजी रनवे की तामीर 4 अरब रुपए की लागत से मुमकिन हुई। कतर एयरवेज और एयर जना फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेशन के ख्वाहिशमंद हैं। इससे कबल कतर एयरवेज एक हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट कर चुकी है। मरकजी रनवे की तामीर से जहां मुसाफिर और कार्गो परवाजें ऑपरेट होंगी, वहीं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्की मौशरत के लिए फायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आपको बताएं, पेट्रोल, LPG और डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद किराए कम न हुए, न ही खाम माल की कीमतें। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए खास रिलीफ मांग लिया। हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल डुबोने से बचाने के लिए इकदाम करे। सनतकारों की दुहाई, कहते हैं डॉलर या पेट्रोल 1 रुपया बढ़े तो अगले दिन ही किराया बढ़ जाता है। सस्ते होने के समरात हम तक नहीं पहुंचते। डॉलर सस्ता, पेट्रोल सस्ता, LPG भी सस्ती, किराए कम हुए, ना खाम माल की कीमतें। हुकूमत लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल डुबोने से बचाने के लिए इकदाम करे। सनतकारों की दुहाई। मिंटकुमरी बाजार के सदर हाजी आबिद कहते हैं डॉलर 1 रुपए बढ़े या पेट्रोल की कीमत, अगले दिन ही किराया बढ़ा दिया जाता है, जबकि सस्ते होने के समारात हम तक नहीं पहुँचते। अगर हमें अपनी इंपोर्ट कम करनी है, इंपोर्ट को ऊपर बर्डन कम करना है, तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ना कुछ सहूलतें देनी पड़ेंगी। उनके जो भी मसाइल हैं उनके साथ बैठ के हमें उनके डिस्कस करना पड़ेगा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाजी आबिद कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री अभी भी मुंतजर है कि पेट्रोल कम होने के कुछ मुस्बत नताइज नजर आएं। अगर हमारे मसाइल गवर्नमेंट हल कर लेती है तो बेइंतहा ज़रूरत है उसकी कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे और उसमें बेहतरी का आसार पैदा हो। सनतकारों का मानना है कि कारोबारी व सनती पैदावारी लागत में कमी के इकदाम किए जाएं तो मुल्क इक्तसादी तरक्की की शाहराह पर तेजी से गामजन होगा। कैमरा टीम के साथ शिराज बर्ड सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, जंग में दाल चना, मसूर दाल, मूंग, काले चने और नए चावल सस्ते हो गए। दूसरी जानिब दाल माश और सफ़ेद चने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गोश्त, रोटी, दूध की सरकारी कीमतें मुस्तहकम रहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नया नर्खनामा जारी कर दिया। जंग में दाल चना, मसूर दाल, मूंग, काले चने और नए चावल सस्ते हो गए। दूसरी जानिब दाल माश और सफेद चने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गोश्त, रोटी, दूध की सरकारी कीमतें मुस्तहकम रहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने नया नर्खनामा जारी कर दिया। जिले इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नई कीमतों के मुताबिक चावल सुपर बासमती नया 10 रुपए कमी के बाद 290 रुपए किलो हो गया। चावल सुपर बासमती पुराना 10 रुपए इजाफे के बाद 315 रुपए फी किलो तय पाए। चावल कायनात की कीमत 305 रुपए से कम होकर 300 रुपए किलो पर आ गई। चना काला बारीक 5 रुपए सस्ता होकर 185 रुपए। दाल चना 207 से 200 रुपए किलो हो गया। चना काला 200 रुपए। दाल मसूर बारीक की कीमत 300 रुपए किलो मुस्तहकम रही। चना सफेद मोटा 10 रुपए महंगा। नए नर्ख 340 रुपए और चना सफेद बारीक 20 रुपए महंगा। नए नर्ख 320 रुपए फी किलो हो गए। बेसन 20 रुपए सस्ता होकर 195 रुपए। दाल मसूर मोटी की कीमत 238 से कम होकर 235 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 15 रुपए सस्ती होकर 225 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। दाल माश धुली हुई 40 रुपए किलो महंगी होकर 440 रुपए। दाल माश बगैर धुली 20 रुपए इजाफे के बाद 400 रुपए किलो हो गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ग्रुपों की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। आजाद उम्मीदवार बतौर इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। बल्दियाती उम्मीदवारों ने फिर से इंतखाबात की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ग्रुपों की फहरिस्त साजी के लिए ओहदेदारों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून के तहत सियासी जमात या ग्रुप के अलावा कोई फर्द आजादाना तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक इलेक्टोरल ग्रुप के अंदराज के लिए दरख्वास्तें 6 से 12 जून तक, नामुकम्मल मालूमात की बिना पर वापसी 13 से 19 जून तक हो सकेगी। 17 जुलाई तक एतराजात पर फैसले होंगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि पिछले 8 साल से महज कार्रवाई ही हो रही है, कागजों पर एक्ट बना दिए जाते हैं मगर इलेक्शन नहीं हो पाते। पीटीआई ने बल्दियाती नुमाइंदे खत्म कर दिए मगर इसके बाद 4 साल तक दोबारा इंतखाबात नहीं हुए। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मसाइल से अवाम निकल सकेंगे और मैं समझता हूँ कि आजकल जो अवाम महंगाई से और दीगर मामला से परेशान है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी परेशानी खासी हद तक कम भी हो जाएगी और गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो नुमाइंदगान कहते हैं निचली सतह तक माली और सियासी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं ताकि अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, वासा फैसलाबाद और मार्केट कमेटी की तरक्याती मंसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरो, साबिक चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद एंटी करप्शन के तलब करने के बावजूद पेश न हुए। वासा फैसलाबाद और मार्केट कमेटी के तरक्याती मनसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर ख्याल कास्तरू और साबिक चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद ढल्लू के खिलाफ भी एंटी करप्शन ने घेरा तंग कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से तीनों रहनुमाओं के नाम गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वासा हुकाम से भी साबिक चेयरमैन शेख शाहिद के दौर में तरक्याती मनसूबों और ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकॉर्ड तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी इब्रार रशीद ढिल्लू और मौजूदा चेयरमैन मार्केट कमेटी भी शामिल तफ्तीश होंगे। तलबी के बावजूद तीनों रहनुमाओं में से कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर के रूबरू पेश न हुआ। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अगर तामील न की गई तो यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब महकमा जंगलात फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। फैसलाबाद महकमा जंगलात में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। महकमा जंगलात फैसलाबाद ने साल 2022 में शजरकारी के एदादोशुमार जारी कर दिए। शजरकारी मुहिम में मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए की करप्शन की गई। महकमा जंगलात फैसलाबाद सर्कल ने कंजर्वेटिव महकमा जंगलात को मुबैना तौर पर करप्शन से आगाह कर दिया। महकमाना ऑडिट की दरखास्त मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। फैसलाबाद सर्कल में 14 लाख टारगेट में से 13,17,000 पौधे लगाए गए। फैसलाबाद सर्कल में गोजरा, समुद्री, टोबा और जड़ावाला में शजरकारी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग के इलाके इकबाल नगर के मकीनों की सुनी गई। सिटी 41 की निशानदही पर इकबाल नगर की तमाम सड़कों की तामीर 6 माह बाद शुरू कर दी गई। शहरियों का कहना है तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानिए मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के पोश इलाका इकबाल नगर के मकीन 6 माह से अजियत और कोफ्स का शिकार। सीवरेज की पाइप लाइन बिछाने की गर्ज से सड़कों की खुदाई की गई, जिसे बाद में तामीर के बगैर अधूरा छोड़ दिया गया। सड़क की अदम तामीर पर सिटी 41 अहले इलाका की आवाज बन गया। निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर ने इकबाल नगर की तमाम सड़कों की तामीर के अहकामात जारी किए। खुदा करके सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई। जून 2023 तक मंसूबे को मुकम्मल करना था, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। पहले 6 माह तो हमने ऐसे गुजारे जब पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरा हमारा मोहल्ला था। एक बारिश होती थी, हम ना मोटरसाइकिल गुजर सकता था, ना कार, ना कोई चीज़, ना कोई आ सकता, ना जब बाहर जा सकता था। अभी इतनी बारिशें हुई हैं, अभी पत्थर डालना शुरू हुआ है। जिस रोड पर ना, जो 2-3 रोड पर पत्थर डाल दिया, कंपैक्शन हो गई है। ये 3 रोड रह गई हैं। ये 3 पर वो काम बहुत स्लो रहा है, अभी जल्दी कर लें ताकि अभी बारिशें हुई हैं, 2-3 बारिशें हुई हैं, अभी बहुत मुश्किलात हैं मोहल्ला वालों की। पूरे मोहल्ले वाले बहुत अज़ियत से गुजर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। सड़कों की तामीर के अमल को जल्द मुकम्मल करके मुश्किलात का खात्मा किया जाए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद चौक घंटा घर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई पड़ गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बनकर रह गया। फेस्को की कमेटियां भी फाइलों तक महदूद। ताजिर बरादरी फेस्को पर बरस पड़ी। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली।
चौक घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बचाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। फेस्को का काम सिर्फ कागजी कमेटियों तक महदूद हो गया। ताजर महकमे की अदम दिलचस्पी पर फट पड़े। घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली के लटकते तार शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाले जान बन गए। ताजरों का कहना है कि फेस्को जदीद बिजली सिस्टम बचाने की यकीन दहानी करवा के कुछ नहीं कर रहा। जगह जगह लटकते बिजली के तार मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने में इजाफा हो जाता है। कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जो सी तारे वगैरह हैं इनों का काफ़ी ज़्यादा मसला है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा मसला हल होता है। ये देखें ना, ये देखें, ये सारियाँ तारे लोगों का करोड़ रुपए का सामान पर है। काफ़ी आग वगैरह लगती है। हमारा भी सामान पर है, हमारा भी नुकसान होगा। अब ये जो तारे हैं ना, वाइट ज़्यादा है, हम वाइट फड़े लगाते हैं, हमारा भी मसला बनता है। जब कोई गुजरता है तार लटकती है, लग भी सकती है किसी को। मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 7 जाने गई हैं, मगर अभी तक कोई इसका जो है ना वो सदेबाब नहीं किया गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना है कि लटकते तारों के मसाइल के हल के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया है। जल्द मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे जायजा लेके जो कंसल्टेंट फर्म है वो जो तारें हटानी हैं, कहीं को खंबे शिफ्ट करने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने हैं, उन तमाम के बारे में वो अपनी तजावीज़ मुरतब कर रही है। उसकी वर्किंग जारी है। जो ही उसका वो वर्किंग पेपर और प्लान हमें मौसूल होगा फेस्को को, उसके बाद हम इन तजावीज़ पर जो एग्जीक्यूशन है, जो काम है, वो हम उसका आगाज़ बहुत जल्द कर देंगे। ताजिर कहते हैं फेस्को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूल करता है। महकमा बिजली की तारों की तरतीब को बेहतर बनाकर जानी और माली नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वैस अली, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, हायर एजुकेशन का 2 साला ग्रेजुएशन पर पाबंदी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैथ्स कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंसेज एजुकेशन और दरस निज़ामी में एसोसिएट प्रोग्राम खत्म कर दिए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। हायर एजुकेशन कमीशन की पाबंदियां नौजवानों के लिए तालीम के रास्ते बंद करने लगी। दुनिया भर में 4 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम राइज होने पर मुल्क भर में 2 साला बीए खत्म करके 4 साला बीएस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तमाम यूनिवर्सिटियों को मरहलावार अपने प्रोग्राम खत्म करने का पाबंद किया गया था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2 साला बीए और एसोसिएट डिग्री के 7 प्रोग्राम बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मैथ्स कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंसेज एजुकेशन और दरसे निज़ामी में एसोसिएट डिग्री में आइंदा दाखिले नहीं हो। माहिरीन तालीम और वालदैन ने HEC की पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 2 साला तालीम खत्म करने की मजम्मत की है। कहते हैं बहुत से तलबा बिलखसूस तालिबात घर बैठकर 2 साला ग्रेजुएशन कर लेते थे, जिससे अब महरूम कर दिया गया है। हर वालदैन के लिए अपने बच्चों को 4 साल तक तालीम दिलवाना मुश्किल हो जाएगा। आसानी से उनके सारे वाक़े जॉब वगैरह भी छोटा मोटा जो घर का मजीद को होते थे वो काम कर चल जाते थे, लेकिन अब अगर ये 4 साल का तो वो लंबा काम होता है, उसके तो काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। ये प्रोग्राम जारी रखना चाहिए था। आप लोगों को पॉलिसी बनाते हुए ये सोचना चाहिए कि हमें कौम की और कौम के आने वाली पौध की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनको जो भी है रहनुमाई अच्छी तरह करनी चाहिए। आप 2 साल का जो है वो पीरियड उसको बढ़ाकर माँ बाप की जेब पे भी बोझ, मुआशरे पे भी बोझ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बंद करने से मुतअद्दिद तलबा इंटरमीडिएट के बाद तालीम के मौक़ों से महरूम रह जाएंगे। 2025 तक डिग्री मुकम्मल ना करने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर आयद होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद की आयशा हाथ पांव से नहीं, हिम्मत से जिंदगी गुजारती है। इंटर की तालिबा माजूरी को मजबूरी नहीं बनने देती, मुंह में कलम थाम कर लिखती है और तस्वीरें भी बनाती है। रोबोटिक बाजुओं से आयशा का मसला हल हो सकता है, मगर करोड़ों का खर्च आएगा। जिंदगी से नाखुश हैं? क्या कुदरत से कोई शिकवा है? आए सोच बदलते हैं, आयशा से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने आपको शायद माजूरी दी, लेकिन आपने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुझे अपने बारे में बताइएगा। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना तो लिखने का बहुत मसला था। मेरी फैमिली माशाल्लाह सब एजुकेटेड है, सब बच्चे पढ़ रहे थे और मैं अपने वालिदैन का ऐसा बच्ची थी कि जो पढ़ तो लेती लेकिन लिखने का बहुत मसला था मुझे। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप नहीं लिख सकती ना, तो बस वो बात मेरे ना जहन में कहीं टिक गई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं ऐसा लिखूंगी कि लोग हैरान होंगे। नहीं, मेरी मजदूरी जो है ना वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है, तो रोबोटिक आर्म्स लगते हैं मुझे, तो वो हमारी पहुंच से ज़्यादा है कि एक बाजू 1 करोड़ का लगता है। ख्वाब तो ज़ाहिर हर बच्चा देखता है, मैंने भी देखे थे। मैंने ये देखा था कि मैं पेंटिंग में और कैलीग्राफी में इतना मतलब कि कमाल हासिल करूँगी कि मुझे जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पजीराई मिलेगी और मैं अपने मतलब कि मुल्क का नाम भी रोशन करूँगी। अज़्म इस्तक़लाल की आला मिसाल
عائشہ جس نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔